यस तिथि हम स्टार्ट करते हैं दुर्गा पूजा से। ठीक है, दुर्गा पूजा यूनेस्को's Intergovernmental Committee for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage recently put Durga Puja in Kolkata on the representative list of Intangible Cultural Heritage of Humanity. ठीक है, ये कमेटी शायद सेकेंड स्टेज पे आएगा ना, कल हमने देखा। तो इसमें 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH, it has 4 primary goals: safeguarding intangible cultural heritage, ensure respect for ICH of the communities, groups and individuals concerned, फिर raise awareness, मैं बॉक्स पढ़ रही हूँ, raise awareness at the local, national and international level of the importance of ICH, फिर provide for international cooperation and assistance, वही safeguarding, ensuring respect for ICH, raising awareness, provide for international cooperation. Other related conventions, 1972 में World Heritage Convention deals with the tangible heritage monuments as well as cultural and natural sites. फिर 2005 Convention on Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expressions aims to provide citizens of the world to enjoy a wide range of cultural goods, services and activities. India is a signatory to all of the conventions. Then more in news. So this inscription will offer this inscription will offer encouragement to the local communities that celebrate Durga Puja, include all traditional craftspersons, designers, artisans, organizers of large-scale cultural events, as well as tourists. It is celebrated in the month of Ashwin, September to October. तो ये अश्विन मंथ कहते हैं. It marks the 10-day worship of the Hindu mother goddess Durga. In literature from around 16th century, we find the first mention. तो in literature 16th century में first mention कहाँ पे? First mentions of grand celebration of Durga Puja by zamindars in West Bengal. तो ये 16th century में हुआ था. Cultural heritage, according to UNESCO, cultural heritage does not end at as monuments and collection of objects, but also includes traditions of living expressions inherited from our ancestors and passed on to our descendants, such as oral traditions, performing arts, social practices, rituals, festival events, knowledge and practices concerning nature and the universe, or knowledge and skills to produce traditional crafts. तो ICH के बारे में, ICH according to UNESCO, traditional, contemporary and living at the same time, inclusive, representative and community based. तो ये है conditions. It is an important factor in maintaining cultural diversity in the face of growing globalization, and an understanding of the ICH of different communities helps with intercultural dialogue and encourage mutual respect for other ways of life. मुझे अभी तक कुछ प्री रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिखा, किसी को लगा तो बता देना कोई पॉइंट. ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल कर देना संजय. तो ये लिस्ट देख लेते हैं. 14, अच्छा 14 है क्या? हाँ, तो इंटेंजिबल हाँ कल्चरल 14 है. हेरिटेज, राइट. देन दुर्गा पूजा इज द लेटेस्ट एडिशन. उससे पहले कुंभ मेला, योगा, नवरोज, ट्रेडिशनल. तो ये नवरोज किसने इंट्रोड्यूस किया? मिडिवल टाइम में किसने स्टॉप कर दिया? किसी को याद है क्या? नीति मैम बताइए. अभी मैं औरंगजेब बोलूंगी. हाँ, आंसर इसका बलबन है. राइट, किसी ने स्टॉप कर दिया ना, कौन था? औरंगजेब ने. होना चाहिए. बलबन ने स्टार्ट किया था, औरंगजेब ने खत्म किया. राइट, ठीक है. तो उसके बाद ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थटेरास ऑफ जंध्याला गुरु, पंजाब. ठीक है. देन संकीर्तन ऑफ मणिपुर, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, छाव डांस सरायकेला, पुरुलिया एंड मयूरभंज. किसी को बताना है क्या कौन सा किस एरिया का है? यस, पुरुलिया वेस्ट बंगाल,
सरायकेला झारखंड एंड मयूरभंज उड़ीसा। एंड इसमें से एक में मास्क नहीं होता है, बाकी सब मास्क वाले होते हैं। सो जो उड़ीसा वाला होता है इट इज मास्कलेस। ठीक है, करेक्ट, सुपर। फिर उसके बाद आएगा कालबेलिया डांस, देन मुडियट्टू ऑफ केरला, रमन फेस्टिवल ऑफ गढ़वाल, एंड कुडियट्टम संस्कृत थिएटर ऑफ केरला, रामलीला यूपी का, वैदिक चैंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्या? यस। हाँ, यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क (UCCN). Recently, Srinagar joins UNESCO's Creative Sites Network under Crafts and Folk Arts category. श्रीनगर के साथ साथ एक और प्लेस है क्या? आई गेस जयपुर शायद पहले ही हो गया। बाकी भी है ना? नीचे दिया हुआ है, मुंबई जयपुर, वाराणसी, मुंबई, हैदराबाद। जयपुर फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, वाराणसी एंड चेन्नई, दो है यहाँ पे। वाराणसी एंड चेन्नई फॉर म्यूजिक, मतलब वो हिंदुस्तानी और कार्नाटिक म्यूजिक के लिए होगा। मुंबई फिल्म, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी। सही है। इतना ही काम का है, बाकी क्राइटेरिया देख लो किस किस के अंदर मिलता है। म्यूजिक में मिलता है, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में मिलता है, मीडिया आर्ट में मिलता है, फिल्म में मिलता है, डिजाइन में मिलता है, गैस्ट्रोनॉमी में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है। तो अभी तक इंडिया में हम लोगों ने म्यूजिक में ले लिया है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में अभी श्रीनगर को मिल गया है, फिर हमें मुंबई फिल्म में मिल गया है और हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में मिल गया है। यानी लिटरेचर, डिजाइन और मीडिया आर्ट में अभी तक नहीं मिला है। तो ये 7 क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। ठीक है, तो इतना याद रखना, 2004 में शुरू हुआ था। एंड श्रीनगर के बारे में थोड़ा रीड कर दो लिप्ति। Srinagar is the homeland to various decorative, renowned arts and crafts like paper making, Kashmiri shawl, Kashmiri silk, art of woodwork, Kashmiri carpets, silverware work, etc. ये कौन सा वुड किसी को पता है क्या? नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये it is situated in the center of Kashmir Valley on the banks of Jhelum River. By joining the network, cities commit to sharing their best practices and developing partnerships involving the public and private sectors as well as civil societies to strengthen creation, production. इतना ही है। वॉलनट वुड है वो। तो कश्मीर। So Darjeeling toy train, more than 2 decades after the Darjeeling Himalaya Railway was designated as UNESCO's World Heritage Site, India has registered the 2 logos of the iconic toy train internationally as its intellectual property. Where the use of these logos anywhere in the world will now require written permission from India and payment of a fee. This will put the Darjeeling toy trains, Iron Sherpa, blue steam locomotive of Darjeeling Heritage Train, on the same pedestal as legendary Transalpine Rhaetian Railway in Switzerland। मतलब उनका भी कुछ है, तो शायद 2 ही है ऐसे लोगोस। ठीक है, एक स्विट्जरलैंड का, एक हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बेस्ट टूरिज्म विलेजेस BTV by UNWTO। Best tourism village is a global initiative to highlight those villages where tourism preserves cultures and traditions, celebrates diversity, provides opportunities and safeguards. It aims to support villages to enhance their rural tourism potential through training and access to opportunities for मतलब ये UNWTO का इनिशिएटिव है, इतना याद रखना है बस। कौन से गांव को मिला इंडिया में? पोचमपल्ली। करेक्ट, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। पोचमपल्ली और किसके लिए फेमस है? ये लिखा है आचार्य विनोबा भावे लॉन्च भूदान मूवमेंट। हाँ, ये आई थिंक 2021 में क्वेश्चन ही पूछा था ना। नहीं, वो तो कुछ और था, सॉरी, अलग था वो। पल्ली था, मदनपल्ली। ये भूदान मूवमेंट यही शायद था ना, वो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। हाँ करेक्ट। नहीं, भूदान मूवमेंट अलग है। सॉरी, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला ये बाद में हुआ। अच्छा,
ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है। करने के लिए। हाँ 1951। तो देख लेना पोचमपल्ली tourism village है, selected as one of the tourism village, and Pochampalli is often referred to as Silk City of India. ये मतलब ठीक है। Pochampalli Ikat received GI status in 2004. Acharya Vinoba Bhave launched Bhutan movement from Pochampalli 1951 में। Ministry of Tourism has recommended 3 villages: Pongthong in Meghalaya, Ladpura Khas in Madhya Pradesh, and Pochampalli in Telangana. अच्छा ये recommended है, but selected was Pochampalli. ठीक, next पे चले क्या? निजामुद्दीन बस्ती। तो हाँ ये conservation initiative at Delhi's Nizamuddin Basti bagged the UNESCO's award under 2 categories: Award of Excellence 2021 and Special Recognition for Sustainable Development Award. तो ये थोड़ा important हो जाता है। एक है Excellence Award, दूसरा Sustainable Development Award. Project restored over 20 historic monuments clustered around the 14th century mausoleum of Sufi Saint Hazrat Nizamuddin Aulia. ठीक है, so 20 historic monuments they have restored. Then award recognizes outstanding achievement in placing heritage at the heart of the sustainable development agenda, overcoming major socio-economic challenges, improved health, education, and well-being, particularly for women and youth, through an innovative people-public-private partnership. हाँ, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये कंटेम्प्रेरी थे गियासुद्दीन तुगलक के, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एंड ही बिलोंग टू चिश्ती ऑर्डर, एंड इसके एक इम्पोर्टेंट फॉलोअर थे अमीर खुसराव, हु डाइड अलोंग विद हिम, ठीक है। जैसे ही मौत की खबर आई थी निजामुद्दीन औलिया की, तो ही ऑल्सो डाइड आउट ऑफ शॉक। तो ये चीज याद रख लेना थोड़ा निजामुद्दीन औलिया के बारे में। कंटेम्प्रेरी थे गियासुद्दीन तुगलक के, ठीक है। सो ये था। ठीक है, नेक्स्ट पे आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य's birthplace Kaladi in Ernakulam, Kerala will likely to be declared as national monument. More about, तो ये कालड़ी है एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम, ठीक है। Significance of आदि शंकराचार्य's birth। विक्टर, हाँ बोलिए। I'm just saying, कल्लड़ी के आसपास कहीं पेरियार रिवर फ्लो करता है। They might ask, ऐसे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का मिक्स करके पूछते हैं, तो I just added on. कौन सा रिवर? कैन यू रिपीट अगेन? पेरियार, I guess. केलाड़ी तमिलनाडु में नहीं था क्या केलाड़ी? वो कीलड़ी तमिलनाडु का है। हाँ, कल्लड़ी अच्छा, फ्रॉम केरला। कीलड़ी का रिवर है वाईगाई। हाँ, करेक्ट, वहां पर एब्सोल्युटली वाईगाई वो आता है। और ताम्रबरनी जो सिविलाइजेशन मिला था उसके आसपास ताम्रबरनी रिवर या उसका दूसरा नाम पोरुनाई है। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो देख लेना पेरियार रिवर है कालाड़ी के आसपास। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ आदि शंकराचार्य's birthplace stems from a legend as per which Shankaracharya was caught by a crocodile that refused to leave him until his mother let him accept sannyasa, that is renunciation. This location is called Crocodile Ghat and holds a religious value. The place is blessed with important temples dedicated to Shri Shankara, Sharada Devi, Shri Krishna and Shri Ramakrishna. ये है। देन एक बार अबाउट शंकराचार्य देख लेते हैं। शंकराचार्य's philosophy is अद्वैत वेदांता, ठीक है, अद्वैता है। It is a version of Vedanta translated as non-dualism. According to it, Brahman, the ultimate transcendent and immanent God of the later Vedas, appears as world because of its creative energy, Maya. Okay, the world has no separate existence apart from Brahman. The experiencing self, that is Jiva, and the transcendental self of the universe, Atma, are in reality identical. Both are Brahman. Though the individual self seems different as space within a container seems different from space as such.
These cardinal doctrines are represented in the verse Brahman Satyam Jagan Mithya. अच्छा, सत्यम जगन मिथ्या, जीवो नहीं, ब्रह्म. हाँ ये इस टाइप के वर्सेस है ना, इनको स्किप कर दिया करो, ये यूपीएससी नहीं पूछेगा। हाँ, करेक्ट. मेन मेन Plurality is experienced because of error in judgments, that is मिथ्या. बस ये वर्ड्स एक बार देख लेना. मिथ्या मतलब मिथ्या और माया is all same, and ignorance अविद्या. विद्या is knowledge, ignorance is avidya, है ना. तो plurality is experienced because of mithya and avidya. Knowledge of Brahman removes these errors and causes liberation from the cycle of transmigration and worldly bondage. About national monuments status, it is designated by the Archaeological Survey under Archaeological Sites and Remains Act 1958, which authorizes the central government to maintain, protect, and promote the site. Currently, there are around 3,600 monuments of national importance by ASI. About Shankaracharya, 788 to 820 CE. He was an Indian philosopher and theologian, Shankara, that is Jagadguru, and was a firm believer in ancient Hinduism. He is considered as an incarnation of Lord Shiva. He took guidance from Guru Govinda Bhagavad Pada, under whom he studied Gauda Padya Karika, Brahma Sutra, Veda, Upanishads. He propagated Advaita Vedanta and Dashanami Sampradaya. Then Shankara came to be known as Shankaracharya among his disciples. His four main disciples were Padmapada, Tokacharya, Hastamalaka and Sureshwara. ये केदारनाथ टेम्पल देख लेना. Recently PM unveiled 12-foot statue of Adi Shankaracharya at Kedarnath, where the Acharya is believed to have attained Samadhi at the age of 32 in the 9th century. Dedicated to Lord Shiva, Kedarnath temple has exquisite architecture built of extremely large, heavy and evenly cut grey slabs. Kedarnath temple is located on the bank of Mandakini river. ठीक है, केदारनाथ इज लोकेटेड ऑन मंदाकिनी. इसका कोई और नाम है क्या मंदाकिनी रिवर का, या फिर मंदाकिनी है? मंदाकिनी है. कौन से प्रयाग पे कौन से पे मिलता है? अच्छा, हाँ, रुद्रप्रयाग है क्या? विष्णु प्रयाग. संजय सर आंसर. नहीं. हाँ, ये रुद्रप्रयाग ही है. हाँ, ठीक है. So a conical rock formation inside the temple is worshipped as Lord Shiva in his Sadashiva form. Temple was originally built in the 8th century AD by Jagadguru Adi Shankaracharya and stands adjacent to the site of even earlier temple built by Pandavas. It is a part of Chardham and Panch Kedar in Uttarakhand and one of the 12 Jyotirlingas of Lord Shiva in India. बस इतना ही है. इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है. Contributions of Adi Shankaracharya, philosophical contributions, formulated the six-sect system of worship, that is Shanmata, which brought to fore 5 main godheads: Vishnu, Shiva, Shakti, Muruga, Ganesh and Surya. इतना important नहीं है. Empowered the sannyasa tradition to by revitalizing the Dashanami structure, Dashanami Sampradaya, wherein monks were organized under 10 titles. ठीक है. किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है. Literary contributions composed 72 devotional and meditative hymns like Saundarya Lahari. दीप्ति मैम, ऑडियो नहीं आ रहा आपको? हेलो, ऑडिबल ना? ठीक है. तो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. ये 72 डिवोशनल मेडिटेटिव हिम्स
इन्होंने बनाया है. आई डोंट थिंक दे माइट आस्क द नेम्स. ठीक है. सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, निर्वाण Shalkam. He authored books on the fundamentals of Advaita Vedanta, including Viveka Chaudamani, Atmabodha, Vakyavritta, Upadesha Sahasri. Wrote 18 commentaries on the major scriptural texts, including हाँ तो ये इन्होंने commentaries लिखा है ब्रह्म सूत्र पे, भगवत गीता पे एंड 12 अदर उपनिषद पे. His review of Brahma Sutra is known as ब्रह्म सूत्राभ्यासा. रिव्यू है मतलब अभ्यासा है, like Brahma Sutrabhyasa, and it is the oldest surviving commentary on the Brahma Sutra. Okay. Then healing of religion. By the time of Shankara's birth, Hinduism has become paralyzed by its own inflexible practice of orthodoxy, ritualism, and formality, and was in a retreat. It was challenged by the rise of ascetic Mahavira Jaina, 599 to 527 BC, and Gautam Buddha, 563 to 483 BC, whose followers branched out into new religions distinct from Mimamsa, Brahmanism, practiced by mainstream Hindus. Adi Shankara, Advaita Vedanta was the philosophically robust response to that era of confusing, integrating diverse thoughts and Hindu practices. तो ये मतलब ये opposite force निकला बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का. ठीक है. 4 ashrams. He established 4 ashrams in 4 corners in India. So he has traveled throughout India. Jyotirmatha in Badrinath, Uttarakhand. एक बार देख लेना. जोशिन ये ज्योतिर्मठा ही होगा. ज्योतिर्मठा, ज्योतिर्पीठम, ये अथर्व वेदा का है. और द्वारका इज इन गुजरात है ना. पश्चिम न्याय श्री शारदा पीठम, द्वारका शारदा मठ, ये सामवेदा के लिए. फिर श्रृंगेरी, दक्षिण न्याय श्री शारदा पीठम और श्री श्रृंगेरी मठा यजुर्वेदा के लिए. तो ऋग्वेदा के लिए पुरी में. देन पूर्वम न्याय श्री गोवर्धन पीठम और गोवर्धन मठ इन ऋग्वेदा. तो एक बार देख लेना. ये पुरी मतलब हाँ पुरी, ज्योतिर्मठा एंड द्वारका एंड श्रृंगेरी. ठीक है ना. इट एडवोकेट्स ना क्यों दिया हुआ है. ठीक है. इट एडवोकेट्स आयमात्मा ब्रह्मा. This Atman is Brahman and was formed on the basis of Atharva Veda. Totakacharya was the head of this matha. Govardhan Matha in Puri, Odisha, part of the famous Jagannath temple, advocates Prajnanam Brahman. Then consciousness is Brahman. It was formed on the basis of Rigveda. Then Padmapada was made the head of this monastery. ठीक है. दीप्ति, जो ना बहुत ऐसा स्पेसिफिक डिटेल लग रहा है ना, उसको ही एक्सप्लेन करो. ये बहुत फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट समझाने का आई थिंक कोई नीड नहीं, ना याद रहेगा ना उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे. तो जो ऑब्जेक्टिव डिटेल्स है ना, जैसे पूरी ऋग्वेद से रिलेटेड है, तो ऐसा करके कंप्लीट कर दो. हाँ. ठीक है. तो वही 4 मठास इन्होंने एस्टैब्लिश किया है. एक पुरी में, एक उत्तराखंड में, एक द्वारका में, एक श्रृंगेरी में. कौन सा किसका वेदा मतलब एक बार देख लेना. पुरी का ऋग्वेदा, ज्योतिर्मठा उत्तराखंड वाला अथर्व वेदा का, द्वारका सामवेदा का और श्रृंगेरी यजुर्वेदा का. श्रृंगेरी इज इन कर्नाटका. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. हाँ. 6 schools of philosophy: वेदांता, न्याय, योगा, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, संख्या. पूर्वा के वेदांता का they have again different sects. वेदांता अद्वैता by आदि, ये थोड़ा important है. अद्वैता by आदि शंकराचार्य, till now we have read. विशिष्टाद्वैता by रामानुजा. तो ये रामानुजा के बारे में कोई कुछ इलैबोरेट कर सकता है क्या? आजकल करंट अफेयर्स में क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बन रही है ना हैदराबाद में.
हाँ, Correct. उनकी Infinity. फिलोसॉफी थी विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड मोनोइज्म। Correct. स्टैच्यू ऑफ हैदराबाद में है लिबर्टी तो हैदराबाद में, राइट। करेक्ट। फिर उसके बाद आएगा द्वैता बाय माधवाचार्य। तो द्वैता इज like duality. Brahman and Atman are two different entities, and Bhakti as the route to eternal salvation. Then there is Dvaita Dvaita by Nimbarka. Brahman is the highest reality, controller of all. फिर शुद्ध Advaita by Vallabhacharya. Both God and individual self are the same and not different. Then Achintya Bheda Bheda by Chaitanya Mahaprabhu. Individual self, Jivatman, is both different and not different from Brahman. बस इतना ही। संजय स्क्रॉल में कुछ ऐड करना है क्या स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में? नहीं, सीरीज ऐड करना है? वैशेषिका कनाद का था और पूर्व मीमांसा जामिनी का शायद, और संख्या कपिला का। वही। राइट राइट, ठीक है। Next, let's go to Sri Aurobindo. Recently, the high-level committee constituted to commemorate the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo held its first meeting under chairmanship of PM. PM chairmanship है ये high-level committee to celebrate 150th birth anniversary of Aurobindo. Early life: born in Calcutta, 15th August 1872, as Aurobindo Ghosh. He received his early education from a convent school in Darjeeling. At the age of 17, he was taken to England along with his brothers, studied at St. Paul's King's College in Cambridge. Then he had secured 11th rank in ICS, didn't clear the probation, part of freedom struggle. Joined secret society working for India's freedom, sometimes known as Lotus and Dagger. In 1893, he joined the state service of Maharaja of Baroda, Sayajirao Gaikwad, and learnt about Indian cultural languages. Joined the Indian freedom struggle in 1902, and in indirect manner, inspiring revolutionaries through Anushilan Samiti. After partition of Bengal 1905, he became active in Indian political movement, joined INC in 1906. ये शायद important है, joined in 1906, मतलब during partition time, partition of Bengal. Worked as principal of Bengal National College. तो ये Bengal National College कब establish हुआ? स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। Correct. So he worked as a principal there. Then spiritual journey, remained active till 1910 when he stopped political activity due to spiritual awakening. From 1910, he spent rest of his life at Puducherry, French colony, Auroville, यहाँ पे, ठीक है। Contributions of Sri Aurobindo, अच्छा, Indian nationalism, हाँ ये important है। New lamps for old, ये articles written by him in इंदु प्रकाश। ये इंदु प्रकाश किसका है? किसी को याद है क्या? इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, गोपाल हरि देशमुख। करेक्ट, गोपाल हरि देशमुख। तो कौन सा? इनके इसमें, हेलो, हाँ, इंदु प्रकाश गोपाल हरि देशमुख थे इसके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गोपाल हरि देशमुख ही थे। तो हाँ, क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न तो ये क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस, तो ये इंपॉर्टेंट है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ही इज बीन क्रिटिसाइजिंग कांग्रेस हियर। देन एडिटेड वंदे मातरम इंग्लिश डेली, स्टार्टेड कर्मयोगिन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड धर्मा बंगाली वीकली। तो वंदे मातरम, कर्मयोगिन एंड धर्मा। वंदे मातरम किसी और का भी है क्या? किसी को याद है? भिकाजी कामा का। करेक्ट करेक्ट। और कर्मयोगिन एंड धर्मा, तो ये भी है इनका।
wrote articles in Jugantar Patrika, Bengali revolutionary newspaper, to inspire revolutionaries, and the Bhavani Mandir, a pamphlet published by Anushilan Samiti. So Jugantar Patrika, Bhavani Mandir, these are published by Anushilan Samiti. During Surat session 1907, known for the Surat split, he joined extremist group by Bal Gangadhar Tilak against the moderates. With 1908 May, arrested in Alipur bomb case, acquitted later. Then on 15th August 1947, in his message, he wished the partition as temporary expedient and be reversed. Sanjay, thoda scroll karna. He shared his dreams as अच्छा देखना है क्या? Dreams of Aurobindo Ghosh flowchart में है. ठीक है, 5 dreams of Aurobindo Ghosh, step in evolution to raise man to higher and larger consciousness. Indian spiritual gift to guide the physic and spiritual practices. World union for a fairer, brighter and nobler life for all mankind. Resurgence and liberation of Asia with India to help in it. And unity of India for its greater future. बस इतना ही. मतलब बस एक बेसिक ये चीज याद रख लेना कि ये मानते थे कि पूरे वर्ल्ड को लिबरेट करने की जरूरत है और उसमें इंडिया का एक स्पिरिचुअल रोल रहेगा. ठीक है, तो उस सेंस में सत्य चित आनंद का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया था. ठीक है, कि माइंड बॉडी एंड वो सब एक हैप्पीनेस के स्टेट में रहे. ठीक है, तो वो देख लेना. बाकी तो आई थिंक छोटी छोटी बुक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एंड आई थिंक इंदू प्रकाश जो है ना, वो मैं न्यूज़पेपर चेक किया तो ये विकिपीडिया पे विष्णु परशुराम पंडित दिखा रहे हैं एक्चुअली. तो एक बार कंफर्म कर देना एक्चुअली लिखा किसने था ये. हाँ, एक्चुअली इन्होंने ही लिखा था. हाँ, इसके बारे में भी लिख रहे हैं. हाँ, विष्णु परशुराम पंडित, लेकिन बाद में शायद इनका एसोसिएशन भी रहा होगा गोपाल हरि देशमुख का, लेकिन एस्टैब्लिश उसने किया था विष्णु शास्त्री जो भी थे, परशुराम पंडित. हाँ, श्री अरविंदो घोष का भी कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है वहां पे. तो यही था. नेक्स्ट चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस. तो अभी 125th एनिवर्सरी था. ठीक है, तो उस सेंस में हमने पराक्रम दिवस जो था वो सेलिब्रेट किया. सो ऑन द ओकेजन अ होलोग्राफिक स्टैच्यू ऑफ नेताजी was unveiled at the Delhi's India Gate. ठीक है, वहां पे पहले किंग जॉर्ज 5 जो थी उनकी मूर्ति थी, अब वो हट गई थी पहले, अब उनकी जगह इनकी मूर्ति बनेगी. ठीक है, so the statue is symbolic of exhorting citizens to build a new India before the 100th year of independence in 2047. So सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार. तो ये एक प्राइज है which is rendered for selfless service rendered by individual or organization in field of disaster management. ठीक है, so announced on 23rd January. इसी दिन पे हम पराक्रम दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी की. इसमें एक कैश प्राइज दिया जाता है 51 लाख का, एंड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एंड 5 लाख प्राइज दिया जाता है इफ इट्स द इंडिविजुअल. ठीक है, सो देयर आर अप टू 3 अवार्ड्स एवरी ईयर. ठीक है, सो अभी 2022 में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर विनोद शर्मा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड. ठीक है, तो ये याद रखना. नेताजी के बारे में बात करें, they were strongly influenced by Swami Vivekananda teaching and he qualified India ICS exam उन्होंने 1920 में क्वालिफाई कर लिया था. towards उसके बाद वो ICS बने थे, कुछ साल वर्क किया था, लेकिन फिर उन्हें पसंद नहीं आया because the kind of activity the Britishers were doing. So Netaji's career took a turn after the horrific incidents of Jallianwala Bagh in Amritsar, and shook by Jallianwala Bagh, he left the ICS in 1921. After returning to India, Netaji came under the influence of Mahatma Gandhi and joined the Indian National Congress, and he started working with देशबंधु. देशबंधु याद रखना किसका नाम था, ये CR दास को देशबंधु बोलते थे. ठीक है, और उन्हीं को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे. वो भी वेस्ट बंगाल से ही थे. ठीक है, तो क्लैश इनका गांधी जी के साथ बहुत बढ़ जाता है. तो मोतीलाल नेहरू की जो कमेटी होती है
वो डोमिनियन स्टेटस मांगते अपनी नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन नेताजी एंड मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू दे वर बोथ असर्टिंग इट। वहां से नेहरू और इनके बीच में एक गहरी मित्रता जरूर बन जाती है, लेकिन इतना काम का नहीं बन पाता, ठीक है, बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली अपोजिंग गांधी फॉर बार बार वो रिप्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस सेंस में वो कई बार उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, इसके चलते डिफरेंसेस बढ़ने लगे थे। इन 1938 हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बताई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अंडर स्टेट ओनरशिप एंड स्टेट कंट्रोल, ठीक है। फर्दर ही टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू प्लानिंग। उसके लिए एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, फाउंड इन्होंने किया था, लेकिन उसके चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, ये याद रखना। त्रिपुरी सेशन में वो अगेन पावर में आए, मतलब वो इलेक्शन लड़े और वो उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था वो क्या बोलते हैं, पट्टाभाई सीतारामैया को खड़ा किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने ये बोला था अगर इसकी डिफीट हो गई, मतलब आफ्टर विच ही वाज डिफीटेड, एंड गांधी सेड कि ये इनकी डिफीट नहीं है, मेरी डिफीट है, ठीक है। तो वो पर्सनल हो गया था दोनों के बीच में, एंड कंटिन्यूड शॉट्स जो फायर किए जा रहे थे बार बार, क्या बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस, जिसके चलते डिफरेंसेस काफी बढ़ गए थे दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूरा रिजाइन कर दिया था, एंड जिसके चलते उनके लिए कांग्रेस को चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो देयर बाय ही आल्सो रिजाइन विद इन दिस त्रिपुरी सेशन ओनली, एंड उनकी जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। इसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1931 में हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो एक जगह कोशिश करते हैं सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने की, तो कांग्रेस से तो बैन हो ही जाते हैं, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स भी उनको पकड़कर हाउस अरेस्ट कर देते हैं। वहां से वो डिस्गाइज करके कैलकाटा से निकल के जर्मनी पहुंचते हैं, एंड जर्मनी में वो कुछ चीजें एस्टेब्लिश करते हैं लाइक आजाद हिंद रेडियो, एंड ये नेताजी को जो टाइटल था उनको वहीं मिलता है, ठीक है, ये याद रख सकते हो। देन फ्री इंडिया सेंटर बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन भी लॉन्च किया गया था, आजाद हिंद गवर्नमेंट का एक प्रीकर्सर था। फिर जर्मनी से भी ज्यादा हेल्प नहीं मिलता तो जापान चले जाते हैं। जापान में रास बिहारी बोस जो होते हैं उनके इंतजार कर रहे होते हैं, और उस टाइम वो मैनेज कर रहे होते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को, ठीक है। तो जैसे ही वो उनको पता लगता है कि ये सिंगापुर में आने वाले हैं, तो वहां पे फिर ये आर्मी की जो कमान है आजाद हिंद फौज की या इंडियन नेशनल आर्मी, वो इनको दे दी जाती है, ठीक है। सो वहां पे वो एस्टेब्लिश करते हैं आजाद हिंद गवर्नमेंट विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मनी एंड जापान, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। करेंसी भी लॉन्च कर दी थी, सिविल कोड भी था, आर्मी भी थी, नेशनल एंथम भी था। In 1943, the head of provisional government, he declared a war on Britain for liberation of India. यहाँ पे वो स्लोगन दिया गया था, चलो दिल्ली। और एक मूवमेंट है दिल्ली चलो मूवमेंट, वो क्या है, किस चीज से रिलेटेड है दिल्ली चलो? इंडिविजुअल सत्याग्रह। बहुत बढ़िया, करेक्ट। सो बेसिकली याद रखना, आईएनए वाज एबल टू विन बैक रंगून, इम्फाल एंड अंडमान निकोबार। वहां पे नेताजी ने रिनेम किए थे अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड, शहीद एंड स्वराज। तो वो नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज किया था, ठीक है। 2018 में मोदी जी ने इनका नाम चेंज कर दिया वापस, तो रॉस आइलैंड, नील और हैवलॉक को रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप। सो बाद में प्लेन क्रैश में उनका पता नहीं लगा कि वो कहाँ गए, ठीक है। सो ये था अदर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो एक फॉरवर्ड नाम से एक न्यूज़पेपर एडिट करते थे, स्टार्टेड हिज न्यूज़पेपर स्वराज, he authored the Indian struggle and covered the country's independence movement in 1920 and 34, ठीक है। जेंडर अपलिफ्टमेंट की तरफ काम किया था। इनफैक्ट उन्होंने जो आर्मी बनाई थी उसमें एक रानी झांसी रेजिमेंट भी था, जिसको कौन हेड करा था? वो हेडिंग दिस रानी झांसी रेजिमेंट, स्वामीनाथन। हाँ, लक्ष्मी सहगल बोलो या स्वामीनाथन बोलो, एक ही पर्सनैलिटी हो। He introduced common worship and celebration of all religious festivals in INA. Many of the minority communities occupied high position in provisional government, ठीक है। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के व्यूज डिफरेंट कैसे थे? Although गांधी जी was hailed as father of nation by Bose, but he recognized Gandhi as an undisputable and unrivaled leader of the masses.
Gandhiji also honored Bose as patriots among patriots. Netaji was like a son to me, ठीक है. So डिफरेंसेस बस यही थे कि गांधी जी जो थे वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते थे नॉन वायलेंस के वैल्यूज पे, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे. इनफैक्ट वो मदद लेना चाहते थे जर्मनी की, और जर्मनी की मदद लेना वो लड़ाई करना ही था एक तरीके से, तो उस सेंस में याद रख सकते हो. नेक्स्ट, क्वीन ह्यू वांग होके, कोरियन क्वीन थी, इज बिलोंग टू हैव बॉर्न टू प्रिंसेस सूरी रत्ना ऑफ अयोध्या. ठीक है, तो ये याद रख लेना. अयोध्या और साउथ कोरिया के बीच में ये लिंकेज है, तो ये याद रखना. हर स्टोरी इज डिस्क्राइब्ड इन सम युग. और तो कुछ काम का नहीं है. नेक्स्ट चलते, गुरु टेक बहादुर 9th सिख गुरु थे, एग्जीक्यूटेड बाय द औरंगजेब. ठीक है, सो ये याद रखना ना. हिज आइम्स आर इंक्लूडेड इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब. यस, ठीक है. ऑलराइट, आगे चलते. दारा शिकोह, तो एल्डेस्ट सन था शाहजहां का, एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब. ठीक है, he was a liberal Muslim and converted Bhagavad Gita and Upanishad into Persian. And Sufi mysticism में काफी इंटरेस्ट था, and was initiated into Khalidri order of Sufis. ठीक है, ये याद सकते हो. Next, Saint Francis Xavier. तो PM greeted the people of Goa on the feast of Saint Francis Xavier. He was the founder of Society of Jesus, who arrived in Goa in 1542. Religious philosophy, service of God, human mankind, harmony, brotherhood. Xavier established a network of Jesuit mission center. He died 3rd December and he died on a Chinese island. ठीक है, वहां से उनके remains were brought back to Goa. तो यही क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा था 2021 में. At Basilica of Bom Jesus Church, the mortal remain of Saint Francis Xavier still exists. Feast of Saint Francis Xavier is celebrated in Goa each year. ठीक है, तो ये याद रखना. Next, रानी कमलापति was a Gond queen and daughter of Raja Kripal Singh of Salkhanapur, Sehor. Gond are the largest tribal community in India, spread across MP, Maharashtra, Chhattisgarh, Andhra, Telangana and Bihar, Odisha. She was married to Nisham Shah of Ginorgarh, son of Surat Singh Shah, who built the Kamalapati Palace in Bhopal in her name. She was a skillful warrior and a Next, Maharaja Ranjit Singh. So he was born in Gujranwala in modern day Pakistan. He was a misildar of Shukracharya Misl, and he was the first Maharaja of Sikh Empire. He remained the Maharaja for 38 years. So ये है ना, 1801 से लेके 1839 तक. He was a secular leader with a modern army and had signed 2 treaties, the Treaty of Amritsar and Treaty of Lahore. ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंडर थी, एंड सतलुज रिवर को मार्क किया गया था एज बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड पंजाब. ये ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है ये बाद में साइन हुई थी. इसके अंदर जब इनकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद लड़ाई होती है, वो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी. नेक्स्ट, ही वॉज गिवन द टाइटल शेर पंजाब. फिर हमारे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें भी किसी को टाइटल दिया गया शेर पंजाब. कौन है वो? करेक्ट, लाला लाजपत राय. Further, he owned the Kohinoor diamond, ये याद रख सकते हो, and Golden Temple at Amritsar. नेक्स्ट चलते हैं पांडुरंग महादेव बप्पत. ठीक है, तो सेनापति बप्पत नाम से नाम जाना जाता था फ्रीडम स्ट्रगल में. बप्पत was raised in a lower middle class Chitpawan Brahmin family in Parner of Ahmednagar district of Maharashtra. Bappat was called Senapati commander because of his leadership skill during Mulchi Satyagraha, the world's first anti-dam movement in 1921. तो याद रखना बप्पत ये कैसे रिलेटेड थे. ठीक है, तो इतना ही है. नेक्स्ट, खुदीराम बोस. तो ये यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी थे जिनको हैंगिंग का सेंटेंस मिला था. ठीक है, तो ये याद रख लेना. Being inspired by a series of lectures given by Sri Aurobindo and Sister Nivedita, he was drawn towards revolutionary activities. So Khudiram Bose joined Anushilan Samiti, and उन्होंने प्रफुल्ल चाकी के साथ
जो डगलस किंग्स फोर्ट था उसके ऊपर बम फेंका था, लेकिन वो मरा नहीं, अल्टीमेटली कुछ और लोग मर गए थे, ठीक है। जिसकी वजह से फिर सेंटेंस के अंदर इसी को ही हम वो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इनको डेथ सेंटेंस मिल गया था। नेक्स्ट मदन लाल ढींगरा, तो इनका मार्टियर डोम है ऑब्जर्व एट द टाउन हॉल इन द अमृतसर। ऑन दिस डे इन 1909 he executed at the age of 26 in London for assassinating British official Sir William Hurt Curzon Wiley, ठीक है। तो ये याद रखना ना। नेक्स्ट मदन मोहन मालवीय, तो born in प्रयागराज, ठीक है। He was a famed freedom fighter and educationist, also known as महामाना, ठीक है। ये नाम याद रखना, महामाना से रिलेटेड मदन मोहन मालवीय से। तो कांग्रेस के आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे 24th और 33rd सेशन के, ठीक है, इन लाहौर एंड दिल्ली रिस्पेक्टिवली। एंड मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें, एडिटर ऑफ हिंदुस्तान एंड स्टार्टेड अबुदया which was a Hindi weekly and Maryada Hindi monthly and Leader इनका सबसे important newspaper है, English daily था। He founded Hindu Mahasabha in 1906 and was a member of Imperial Legislative Council. He also founded the Banaras Hindu University. तो ये एक्चुअली सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी थी जो कि इन्होंने बनाई थी, एनी बेसेंट ने उसी को रिफर्बिश करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया था। एंड ही वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न पोस्टह्यूमसली इन 2015, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट रानी गांडेलियू, तो मणिपुर से ये रिलेटेड थी एंड शी जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल एट द एज ऑफ 13। शी वाज एट द फोरफ्रंट ऑफ हिराका मूवमेंट। हिराका जो था जो नागा ट्राइबल थे उनके एक रिलीजियस मूवमेंट था उनका प्यूरिफिकेशन को लेके। 1932 में शी वाज अरेस्टेड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू रेजिस्ट द ब्रिटिशर्स एंड जब नेहरू इनसे मिले तो इन्होंने इनको रानी का टाइटल दिया था, ठीक है। आजादी के बाद इनको छोड़ दिया गया था जेल में से। नेक्स्ट भगवान दास, ही वाज एन इंडियन थियोसॉफिस्ट, ठीक है। इन 1921 ही वाज सेंटेंस्ड टू 1 year imprisonment by the British for association with the NCM. He was the founder of काशी विद्यापीठ, ठीक है। तो काशी विद्यापीठ वो जो हम पढ़ते हैं क्रॉप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन विच क्रॉप्ड अप ड्यूरिंग द NCM मूवमेंट, उनमें से एक था। हाँ, NCM के दौरान आए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में काशी विद्यापीठ नाम से पता लग रहा है ये बनारस में था। 1955 में ही गॉट भारत रत्न। नेक्स्ट सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। सो इनका 100th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करें। महाकवि बोला जाता है इनको। ही वाज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न तमिल पोएट्री। राजा ऑफ इत्यापुरम impressed by his poetry gave him the title of Bharati, which means goddess Saraswati. So he was proficient in these many languages, stood against child marriage, reforming Brahmanism and religion. His motto was Ari Velu Thivalu, clarity of mind. तो आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है, तो कल बचा हुआ पार्ट है इसको आफ्टरनून में कर लेते एक सेशन में, ठीक है।